Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlab from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to start our second unit from SYBSC Zoology paper 2nd semester 3. The title of unit is Respiration and Circulation. So this is our second unit title. So in that we have to study about the comparative study of different animals respiratory system as well as the circulatory system. So in this unit we have to study about the respiratory organ of earthworm, spider, bony fish, frog, pigeon and human, as well as we have to study about the type of circulating fluid: water, coelomic fluid, hemolymph, lymph and blood with respect to particular organism, and the comparative study of circulation. In that we have to study about the structure and function or mechanism of working of hearts from earthworm, cockroach, shark, frog, crocodile, pigeon and human. So these are the points from second unit. In last unit, that is unit number 1, we discuss about the nutrition and excretion. In that we discuss about the comparative study of nutritional apparatus of different animals, as well as the excretory and osmoregulatory structures in various animals categorization depending on their nitrogenous excretory product. So these are the certain points from unit number 1. So now in this second unit we are going to study about the respiration and circulation. So first point is that the circulation means what? The respiration means what? The respiration is the metabolic process which is common in all organisms or all living things, which includes the breathing, transportation of gases and oxidation of a food. So these are the certain processes or mechanisms carried in organisms which is necessary to their regular body mechanism. So these gaseous exchange or transportation of gases is required for the oxidation purpose. The oxidation of food is carried inside the cell. Mitochondria and cytoplasm plays an important role for the oxidation, where the cell or the organism get the energy which is used for the mechanism of system, cell or organism. So this oxidation of food leading to liberation of CO2 and energy. So the energy, it might be in a ATP form as well as the electron form, and the side product of this oxidation process is carbon dioxide. So no doubt this process is carried inside the organism, and that process has some beneficial product and some side products. Okay, so by this process of respiration, the cell of organism gets energy by combination or combining oxygen and glucose, result in the release of CO2, that is carbon dioxide, water and adenosine triphosphate, that is ATP molecule. The respiration has two different essential processes. That is, first one is external respiration, or we can it called as a breathing, and the second one is the internal respiration, which is the chemical process carried inside the cell. So first of all, external respiration means what? It is the breathing process. In this, there is the exchange of gases takes place between organism and surrounding.
सो जो ऑर्गेनिज़म है उसमें अगर रेस्पायरेशन चल रहा है तो ये पहला जो स्टेप है उसमें गैस या फिर जो एयर है वो बॉडी के अंदर में लेना और अंदर से उसको बाहर छोड़ना, मतलब सराउंडिंग से अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर सेल में और सेल से सराउंडिंग में। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है, उसी को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो देयर इज जस्ट चेंजेस फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड the organism. Okay, the second process is that the internal respiration. It is chemical process। जैसे हमने लास्ट में बोला था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है सेल में। तो वैसे ही ये जो रेस्पायरेशन है वो उस सेल के लेवल पे होता है। इट टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल और यूकैरियोटिक सेल, वेयर दिस gaseous exchange is occurred and the gas or the oxygen get used for the oxidation purpose of the food, where the carbon dioxide, the energy molecule and water is liberated from that food source. Okay, so these are the two particular respiration processes. Okay, external respiration and internal respiration. Then there are types of respiration: direct respiration and indirect respiration. अभी जैसे हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन देखा, वैसे ही ये दो टाइटल्स है या फिर दो टाइप्स है इसमें, कि जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर है बट बॉडी साइज उनका छोटा है, तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो डायरेक्टली होता है, कि जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो डेवलप नहीं होता, तो ऐसे ही ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है। और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर मैकेनिज़्म है, तो उसमें स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप होता है और वो ऑर्गन वहाँ पे गैसियस डिसोल्यूशन में वहाँ पे या फिर डिफ्यूजन में वर्क करता है। मैकेनिज़्म उसका वही होता है कि जो गैसियस को डिफ्यूज़ कर सके। ओके, तो ये है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसियस बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड बॉडी सेल्स। जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट और सेल्स के बीच में होता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट विदाउट एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्लड, और वी कैन कॉल एज द एक्सपायरेटरी ऑर्गन। ये जो प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का वो एक स्पेशल ऑर्गन या फिर ब्लड के थ्रू किया नहीं जाता। सो डायरेक्ट गैस का एक्सचेंज वहाँ पे सेल, साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो है उसमें वो किया जाता है। द गैसियस एक्सचेंज ऑकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। जो गैस का एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंडेंट वो डिफ्यूज़ होते हैं। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ऑक्सीडेशन की वजह से वो बढ़ता रहता है। और एक्सटर्नली अगर सेल के बाहर की बात करें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जैसे ये एक दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे अपोजिट मैनर में है, इनसाइड द सेल, इन आउटसाइड ऑफ द सेल, तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स है वो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये गैस उस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होते हैं। लाइक एज ए डिजोल्विंग मैनर वो सेल के अंदर आते हैं, ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा और वहाँ का ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर के जो एयर है उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे आपने ऑस्मोसिस स्टडी किया था कि जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे
सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है, मूवमेंट करता है। वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे कैरिड आउट होती है कि जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है वहाँ पे ये गैस डिफ्यूज़ होता रहता है। सो ऑक्सीजन आउटसाइड से सेल में जाता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर आता रहता है। तो ये है डायरेक्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस followed by the organism are amoeba, hydra, flatworms, etc. The organisms which is smaller in a size. Okay, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का साइज है वो कम है. So these are the photographic structures of hydra and the earthworm. A small aquatic animals as cnidarians and platyhelminths. The gaseous exchange is directly with the external environment. डायग्राम में आप देख रहे हो कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे उनमें उनके जो स्किन है या फिर बॉडी है वो सेल से होती है. ओके, देन these are the another example from insect कि जहाँ पे स्पाइरैकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो स्पाइरैकल्स ट्रकिया एक छोटा सा वेसल्स वहाँ पे होता है, वो कंटिन्यू आगे जाके डिवाइड होके ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है कि जो वहाँ पे बॉडी का और सर्टन इंटरनल पार्ट्स का जो ब्लड सेल है या फिर वहाँ के टिश्यू है उनका डायरेक्टली कांटेक्ट वहाँ पे फॉर्म करते हैं. सो दीज आर द स्पाइरैकल ओपनिंग और ट्रकियल ओपनिंग. ओके, कि जहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज इंसेक्ट्स में इजीली एक्सटर्नली या फिर डायरेक्ट रेस्पिरेशन वहाँ पे उनमें होता है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. अब ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि देयर आर स्पेशलाइज्ड organ developed for the respiration purpose. So the indirect respiration involves special respiratory surface or organ for the respiration process. The organ may include skin, gills, buccopharyngeal lining, lungs and blood for circulation of the gases in the body. ये ऐसे 4-5 अलग अलग वहाँ पे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं कि जिनके हेल्प से गैसियस एक्सचेंज बॉडी में या फिर गैसियस का सर्कुलेशन वहाँ पे होता है. मोस्ट ऑफ टाइम जो ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है वो मल्टी सेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम वहाँ में उनमें डेवलप होती है कि जिसकी वजह से ये ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनमें डेवलप होता है रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए. और वो रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड वहाँ पे हर एक सेल के लोकेशन पे किया जाता है. ओके, द रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इवॉल्व्स एज द एनिमल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विथ हाइयर मेटाबॉलिक रेट. जैसे जैसे एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते गए या फिर उनके सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते गए और उनमें जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ता गया. मतलब जो भी फूड का ब्रेकडाउन हो या फिर उसका बॉडी में ब्रेक के बाद या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म होने के बाद बॉडी का बिल्डअप हो, तो वो जो प्रोसेस है वो फास्टर होता गया. वैसे वैसे उनमें ये जो प्रोसेस है या फिर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती गई और वो ऑर्गन वहाँ पे स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन के लिए होता गया. ओके, द गैसियस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू बॉडी सेल डन बाय द ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये जो गैसेस ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड से वहाँ पे किया जाता है हर एक सेल पे या फिर हर एक टिश्यू के लेवल पे. और जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ वहाँ पे कनेक्टेड होता है और वो हर एक सेल के या फिर टिश्यू के कांटेक्ट में वहाँ पे फाइन लेवल तक होती है. देन द इफिशियंसी और द इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज a respiratory surface must possess a characteristics.
जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुए उनमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे होनी चाहिए जिसकी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज उनमें होता है। तो वो है द एरिया और द पार्ट और द पर्टिकुलर सरफेस मस्ट बी थिन। जो वहाँ का सरफेस है वो पतला होना चाहिए। परमिएबल टू गैस, मतलब जो गैसेस वहाँ पे एक्सचेंज होने वाले हैं उनको वो अलो करे कि एक साइड से दूसरे साइड तक वो जा सके, ऐसा वो परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर बाउंड्री होनी चाहिए। इट मस्ट बी मॉइस्ट, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए जिसकी वजह से जो एयर में या फिर एनवायरनमेंट में गैस प्रेजेंट है वो उसमें डिज़ोल्व हो सके। मस्ट बी मॉइस्ट। मस्ट बी हाईली वास्कुलर, उनमें या फिर उस ऑर्गन में वास्कुलर सिस्टम मतलब जो कैपिलरीज है वो बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, जिसके वजह से वहाँ पे जो ब्लड में गैसेस डिज़ोल्व होने वाले हैं या फिर एक्सचेंज होने वाले हैं वो वहाँ पे इजीली हो सके। देन इट मस्ट हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, जो गैस एक्सचेंज वहाँ पे होने वाला है उस ऑर्गन में, वहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते गए और मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता गया, वैसे उनमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है। तो जैसे जितना लार्ज एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में रहेगा और वो जो हाइयर मेटाबॉलिक रेट का रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का वो वहाँ पे फुलफिल कर सके। ओके, एंड लास्ट characteristic is it must be in direct contact with the source of air or a water। तो ये जो ऑर्गन है वो स्पेशली जो सोर्स है एयर या फिर वाटर, जहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनिज्म का है तो वहाँ से वो होता है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके, सो दैट द ऑर्गन गेट रिसीव a particular air or water for the gaseous exchange. So these are the photographic examples from human where the respiration is carried out, indirect respiration। पहले हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग्स है या फिर नोजल कैविटी है वहाँ से एयर लंग्स में जाती है, लंग्स से होके जो ट्रकिया है, ट्रकिया से ब्रांकियोल से जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांकियोल से वहाँ में उसमें जाती है। उसके बाद वहाँ से जो फाइन ब्रांकियोल्स है उस पे अल्वियोलाई होती है। तो उस अल्वियोलाई में क्या होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज है लाइक अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज होता है और वो डिफरेंट या फिर नंबर ऑफ कैपिलरीज से ब्लड के वेन से वो घिरा हुआ है या फिर सिचुएटेड होता है उसमें, तो जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज ब्लड में और वो अल्वियोलाई में इजीली पास होता है, डिफ्यूज़ होते हैं। सो देन दैट ऑक्सीजन और द गैस गेट डिजॉल्व इनसाइड द ब्लड एंड दैट ब्लड गोज टूवर्ड्स द ईच सेल वेयर इट अगेन एक्सचेंज द गैस फ्रॉम ब्लड टू सेल एंड सेल टू ब्लड। तो ब्लड में जो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस डिज़ोल्व होगा और जो हाइयर ऑक्सीजन लेवल रहेगा ब्लड में वो सेल में डिफ्यूज़ होगा। तो ये ऐसे वहाँ पे प्रोसेस होता है कि जहाँ पे ये दोनों गैसियस एक्सचेंज आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो। ओके, सो दीज आर द सर्टन पॉइंट्स फ्रॉम द respiration। Okay, so these are the general terms and types of respiration: the external respiration, internal respiration, which is the essential process, okay, and the types of respiration is direct respiration and indirect respiration। so जो भी difference है इनमें ये हमने अभी देखा, और अगर कुछ उसमें थोड़ा बहुत छूट गया हो तो डिटेल्स में इस डायग्राम में आप बाद में देख सकते हो कि जो वहाँ पे पूरा की पूरा दिया गया है। ओके, तो ये था डिटेल अबाउट द रेस्पिरेशन। सो होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, थैंक यू। कुछ डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू।